Hello everyone, welcome back to our channel, that is Health Bar. So in the continuation of the previous video, that is about the hospital acquired infection. So in the earlier video we have discussed regarding bundles. So in the earlier video, the one bundle we have discussed, that is about the SSI bundle. SSI is the surgical site infection bundle. So now in the continuation of the same video, we are going to teach you about the, that is CLEPSI bundle. CLEPSI is the central line associated bloodstream infection bundle. So before the CLEPSI bundle, we'll discuss about the basic concept of the central line. So as you know, the central line is basically inserted in the three main veins. The first preference will go to the subclavian vein, second preference is the internal jugular, and the third preference will goes to the femoral vein. If we talk about the different veins, so in case if you are dealing with a patient who is having a life-threatening condition and patient is coming in an ER department with a severe injuries, then we can choose femoral vein as a first preference. But in case if it is a planned procedure, means अगर central line हमारा planned procedure के अंदर आता है, then we have to choose that is subclavian and the internal jugular as a that is first preference, because these two areas are the safest areas and these are the less contaminated areas. But in case if we choose the femoral one as a planned procedure, then this is a highly infected area and there is a more chance of getting the infection to the patient. So our motto is we have to prevent the patient from the infection. That's why we are choosing the internal jugular and the subclavian as the first preference. So in case, suppose if we are inserting the central line, as you can see, this is a central line. So in the central line, this portion is known as the catheter, and this catheter will goes inside the body, and the end tip of this catheter will reach towards the right atrium of the heart. That's why we are going to provide a central line care, because patient may suffer from the endocarditis, pericarditis, myocarditis, or maybe patient may suffer from the any kind of infection or the inflammation. That's why on every 7th day we have to provide a central line care. Central line care हम हर दिन provide नहीं कर सकते पेशेंट को, हम central line care जो होती है वो 7th day में provide करते हैं. बट हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए कि central line की ड्रेसिंग जो है वो soiled हो चुकी है या ब्लड स्टेन उसमें लग गया है, तो वो central line की ड्रेसिंग हमें 7 day से पहले चेंज करनी होती है. बट अगर central line की ड्रेसिंग बिल्कुल इंटैक्ट है, वहाँ पे कोई swelling नहीं है, वहाँ पे हमारा ब्लड स्टेन नहीं है, तो हमें 7 days के बाद ही चेंज करनी होती है सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग. तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं डेट इज कैथेटर, और जो ये वाला पोर्शन है ये राइट एट्रियम ऑफ हार्ट तक जाता है. जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं इंसर्शन एरिया. दिस ब्लू पार्ट इज नोन एज द इंसर्शन एरिया एंड दीज टू आर दी फेलेंजेस. और इन फेलेंजेस में यू आर एबल टू सी दी होल्स, और इन होल्स को हम क्या करते हैं, सूचर कर देते हैं, ताकि जो ये हमारी सेंट्रल लाइन है वो एक जगह में फिक्स हो जाए. उसके बाद हम जो ये 3 ट्यूबिंग्स देख रहे हैं, इन ट्यूबिंग्स को हम बोलते हैं डेट इज़ द ल्यूमेन. और उसके बाद जो आप ये पार्ट देख रहे हो, दीज आर द डेट इज़ हब. अब अगर हम बात करते हैं इन ट्यूबिंग्स की, तो इन ट्यूबिंग्स में जो ये वाली ट्यूबिंग है दिस इज़ अ प्रॉक्सिमल ट्यूबिंग. उसके बाद जो ये बीच वाली है दिस इज़ अ डिस्टल ट्यूबिंग. उसके बाद जो साइड वाली ट्यूबिंग है दिस इज़ द मीडियल ट्यूबिंग. तो इसमें 3 ट्यूबिंग्स होती हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास कि हम किस ट्यूबिंग से मेडिसिन दें, किस ट्यूबिंग से हम लोग ब्लड सैम्पलिंग करें. JCI NABH प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग यू कैन चूज़ एनी ऑफ द पोर्ट फॉर द ब्लड सैम्पलिंग और एनी ऑफ द पोर्ट फॉर द डेट इज़ फॉर द मेडिकेशन. बट हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमारे इस येलो पोर्ट से एंटीबायोटिक या फिर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चल रही है, तो हमें इस पोर्ट को 2 आवर्स तक यूज़ नहीं करना है ब्लड सैम्पलिंग या फिर हमारे डेट इज़ मेडिकेशन पर्पस के लिए. तो हमारे पास जो अदर 2 पोर्ट्स हैं उनको हम चूज़ कर सकते हैं, बट 2 आवर्स के लिए हम इस पोर्ट को चूज़ नहीं करेंगे इन केस अगर इस पोर्ट से हमारी एंटीबायोटिक या फिर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चल रही है. अब सेंट्रल लाइन केयर, हम सेंट्रल लाइन जब हम इंसर्ट करते हैं, तो सेंट्रल लाइन हम इंसर्ट करते क्यों हैं पेशेंट के अंदर? बहुत सारे हमारे पास इंडिकेशंस होते हैं सेंट्रल लाइन इंसर्ट करने के. अगर हम बात करें इंडिकेशन की, तो सबसे पहला इंडिकेशन है हमारे पास जब हमें लार्ज नंबर ऑफ फ्लूइड्स को इन्फ्यूज़ करना होता है. means when we have to infuse a large amount of the fluids, or in case if patient is on the inotropic agents. अगर patient हमारा inotropic agents पे है, infusions में है, डोपामिन, डोबिटामिन, मिडाजोलाम, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि सेंट्रल लाइन में हमारे पास मल्टीपल ल्यूमिन्स होते हैं, और इन मल्टीपल ल्यूमिन्स में हम लोग एक टाइम पे 2 और 3 अमाउंट के फ्लूइड्स जो है उनको हम लोग फ्लश कर सकते हैं. अदर रीजंस की अगर हम बात करें, तो अगर जैसे जीरियाट्रिक पेशेंट्स हैं, जीरियाट्रिक पेशेंट्स में क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं और उनको हम लोग ईजिली पंचर नहीं कर पाते कैनुला की हेल्प से. तो उस टाइम पे भी हमें क्या है, सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करना पड़ सकता है.
नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं सेंट्रल लाइन जो हम इंसर्ट करते हैं, जैसे पेशेंट आपका हाइपोवोलेमिक शॉक में है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है कि पेशेंट का फ्लूइड जो है सारा अमाउंट लॉस हो जाता है बॉडी से, तो उसकी वजह से हमें पेशेंट को एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड को इन्फ्यूज़ करना पड़ता है उसके बॉडी के फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए वी कैन इंसर्ट द सेंट्रल लाइन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सेप्टिक शॉक के पेशेंट आते हैं, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम के पेशेंट्स आते हैं, तो इनमें भी हमें कई बार क्या है सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करना पड़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास डायलिसिस के लिए आता है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का टेम्प्रेरी डायलिसिस होना है तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं सेंट्रल लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं टेम्प्रेरी बेसिस में। ओके, अब इसमें क्या है कि सेंट्रल लाइन हमने इंसर्ट तो कर दिया, बट इस सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करने के बाद क्योंकि जिस एरिया में हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारा फीमोरल हो, सब क्लेवियन या फिर इंटरनल जुगुलार, उस एरिया को हमने पंचर किया है, मींस इन्वेजिव प्रोसीजर है हमारा, तो वहाँ पे क्या है माइक्रोब्स इजीली एंटर कर सकते हैं, क्योंकि वो एरिया जो होता है इंसर्शन एरिया वो हमारा एक तरीके से पोर्टल ऑफ एंट्री हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ये एरिया तो ऐसा है कि माइक्रोब्स इस एरिया में बहुत ईजिली इंसर्ट भी हो सकते हैं एंड देन दे विल कॉज अ सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन और वी कैन से अ सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ द इन्फेक्शंस इन द पेशेंट। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। इसीलिए हमारे पास क्लेप्सी बंडल बना है, इसीलिए हम लोग सेंट्रल लाइन की जो केयर है पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं हर 7th डे में, या फिर अगर सॉइलिंग हो जाती है ड्रेसिंग की तो हमें उसी टाइम पे चेंज करना पड़ेगा, हम 7th डे का वेट नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हम सेंट्रल लाइन की हेल्प से हम सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है उसको भी मेज़र कर सकते हैं। सेंट्रल वीनस प्रेशर मेज़र करने के लिए हमें सीवीपी का जो मैनोमीटर होता है वो यूज़ करना होता है और उसको हमेशा हम हार्ट लेवल पे रखते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिल सके। डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको सीवीपी का जो प्रेशर है वो डिफरेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डेट इज़ कुछ बुक्स में आपको मिलेगा सेंट्रल लाइन का प्रेशर डेट इज़ 2 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O, कुछ बुक्स में मिलेगा आपको डेट इज़ 8 to 15 mm ऑफ Hg। बट इन केस अगर पेशेंट का सेंट्रल लाइन का जो प्रेशर है वो लेस देन 2 है, दैट मीन्स जो हमारा पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है हाइपोवोलेमिक शॉक से या हाइपोवोलीमिया या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक से। अगर यही प्रेशर हमारा डेट इज़ 15 या 20 से अबव हो जाता है, इसका मतलब पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है, जिसमें क्या होगा पेशेंट को हाइपरवोलीमिया हो सकता है, मे बी पेशेंट सफ़र कर रहा हो हमारा कार्डियक टेम्पोनेट से, या पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन में था इसलिए उसका जो प्रेशर है वो बढ़ गया, और कई बार डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से भी जो हमारा सेंट्रल वीनस का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब हमारे पास था एक बेसिक कॉन्सेप्ट सेंट्रल लाइन का। अब हम जो आते हैं वो नर्सिंग एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं, बिकॉज इंसर्शन पार्ट इज़ नॉट अ नर्सेस पार्ट। इंसर्शन कैन बी डन बाय द ICU इंटेंसिविस्ट और द सर्जन्स, बट एज अ नर्स हमारा मेन रोल क्या है, वी हैव टू प्रोवाइड द सेंट्रल लाइन केयर सो दैट वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो सेंट्रल लाइन केयर का जो एस्पेक्ट है या केयर करते कैसे हैं वो हम आपको अपकमिंग वीडियोज़ में शो करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग सेंट्रल लाइन के बंडल के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम सेंट्रल लाइन की केयर करने जा रहे हैं तो हमें उस टाइम पे उसका बंडल यूज़ करना होता है। तो बंडल में हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट क्राइटेरियाज़ हैं, वो क्राइटेरियाज़ को हमें फुलफ़िल करना होता है। सबसे पहले जो क्राइटेरिया हमारे पास आता है डेट इज़ सबसे पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी होती है। तो हैंड वॉशिंग हमें करना है क्योंकि हम लोग सेंट्रल लाइन को टच करने जा रहे हैं, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप जो आता है सेंट्रल लाइन के बंडल के अंदर वो है हैंड वॉशिंग। सेकेंड क्राइटेरिया आता है इसके अंदर कि हमें असेसमेंट करना है कि द लाइन इज़ इंटैक्ट और वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ इंसर्शन ऑफ द सेंट्रल लाइन। हमको ये देखना है कि असेसमेंट करना है सेंट्रल लाइन इंटैक्ट है कि नहीं है, या फिर हमें क्यों रिक्वायरमेंट है सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करने की। उसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया है इसके अंदर वो ये है कि हमको ये देखना है कि जो हम ड्रेसिंग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जो ड्रेसिंग हम अप्लाई करते हैं सेंट्रल लाइन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं टेगरडम। टेगरडम की ड्रेसिंग बहुत कॉस्टली ड्रेसिंग होती है। अब जो सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग है अगर वो हमारी सॉइल्ड हो जाती है या फिर उसमें ब्लड स्टेन लग जाता है तो हमें उस ड्रेसिंग को वहीं के वहीं चेंज कर देना है। हम लोग 7 डे का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने 7 डे का वेट किया देन द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम द सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो हमें 7 डे से पहले पहले ही वो ड्रेसिंग को चेंज कर देना है। बट अगर यही ड्रेसिंग जो टेगरडम की ड्रेसिंग हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर वही ड्रेसिंग हमारी दैट इज़ बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें कोई ब्लड स्टेन नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, ड्रेसिंग बिल्कुल सही है, तो उसको हम 7 डे के बाद ही चेंज करेंगे। 7 डे से पहले चेंज नहीं करेंगे अगर ड्रेसिंग बिल्कुल क्लियर है। अगर सॉइल्ड है तो हम 7 डे का वेट नहीं करेंगे, बिकॉज सॉइलिंग जो होता है वो पोर्टल ऑफ एंट्री हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये हमारा होता है थर्ड पॉइंट।
अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है सॉल्यूशंस हम क्या यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो ये ब्लू वाला पार्ट है, दिस इज़ अ इंसर्शन पार्ट, इस इंसर्शन एरिया को और जो ये ल्यूमिन्स होते हैं हमारे पास, इनको हम क्लीन करते हैं डेट इज़ 2% ऑफ क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट से। जो हम ये एरिया साफ़ कर रहे हैं इसको हमें सर्कुलर मोशन में फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी क्लीन करना होता है, और वो भी हमें सर्कुलर मोशन में। तो 30 सेकंड के लिए हम क्लीन करते हैं इस इंसर्शन एरिया को। तो ये इंसर्शन एरिया और जो ल्यूमिन्स है हमारे पास, इन्हें हमें क्लीन करना है किस चीज़ से, डेट इज़ 2% ऑफ क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट। उसके बाद हमारे पास ये हब्स आते हैं, इन हब्स को हमें क्लीन करना है डेट इज़ एल्कोहल स्वैब से। एल्कोहल स्वैब जो हमारे पास आता है वो है 70% ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल स्वैब। तो उस 70% से हमें 15 क्लॉकवाइज एंड 15 एंटी क्लॉकवाइज इसको क्लीन करना है, मतलब 30 टाइम्स क्लीनिंग करनी होती है। और हमें सिंगल एल्कोहल स्वैब्स को यूज़ करना है क्लीनिंग पर्पस के लिए। हम एक ही एल्कोहल स्वैब से तीनों हब्स को क्लीन नहीं कर सकते हैं, सिंगल एल्कोहल स्वैब्स को सिंगल हब को क्लीन करना है। तो ये आता है हमारे पास, दैट इज़ 4th पॉइंट। लास्ट में ये होता है कि अगर आप सेंटर लाइन को चेंज कर रहे हो तो हमें सेंटर लाइन की ड्रेसिंग हमें उसमें मेंशन करनी होती है कि सेंटर लाइन की ड्रेसिंग हमने किस दिन चेंज की है, तो उसमें हम डेट मेंशन कर देते हैं सेंटर लाइन की ड्रेसिंग का। तो ये हमारे पास है, डेट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट और ये बेसिक क्राइटेरिया ऑफ दिस सेंटर लाइन। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आते हैं सेंटर लाइन केयर के बंडल के अंदर आते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को हमको ध्यान रखते हुए सेंटर लाइन की जो केयर है वो हमें करनी चाहिए। तो एक बार हम इन बंडल्स को या फिर इस पूरे क्राइटेरिया को फिर से देख लेते हैं जल्दी से। पहला आता है आपका हैंड वॉशिंग, सबसे पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी है। सेकंड आता है कि हमको ये देखना है कि असेसमेंट करना है उस पूरी लाइन का। थर्ड हमारा आता है कि हमको जो हमारी अगर ड्रेसिंग इंटैक्ट है तो हमें 7 डेज़ के बाद चेंज करनी है, अगर ड्रेसिंग इंटैक्ट नहीं है तो हम उसको चेंज करेंगे कितना, वहीं के वहीं हम उसको चेंज कर देंगे, हम 7 डे का वेट नहीं करेंगे अगर वो सॉइल्ड है। फोर्थ आता है हमारे पास कि जो इंसर्शन एरिया होता है और जो ल्यूमिन्स होते हैं उसको हमें क्लीन करना है, डेट इज़ 2% ऑफ क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट से। और जो हमारे पास हब्स होते हैं या पोर्ट्स होते हैं उन्हें हम क्लीन करते हैं 70% ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल स्वैब से। एंड द लास्ट आपको अपने सिग्नेचर एंड यू कैन राइट द डेट एंड द टाइम ऑफ द चेंज ऑफ द सेंटर लाइन ड्रेसिंग, तो वो हमें लिख देना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेंटर लाइन केयर। आई होप you understood about the center line care, or we can say the bundle. Caring aspect we'll discuss in the upcoming videos. So thank you so much. Please like our channel, subscribe and hit the bell icon so that you can get the notification of the upcoming videos. यह हो गया अभी